Hello everyone, welcome you all in class 10 geography. This is chapter number 6 manufacturing industry and this is the module 2nd. In module 1st of this chapter we were discussed about the importance of manufacturing industry and the mean of the manufacturing industry. In this module, means module number 2, we are going to discuss about 3 main topics of this chapter. These topics are: first, role of manufacturing in the economy; second, ideal location of industries; and the third one, classification of industries. So let's start the first topic of this module number 2, role of manufacturing industry or the manufacturing in economy. As you know that there are 3 economic activities: primary, secondary and tertiary. In ancient time, our maximum population engaged in primary activity. But now there is a shift of the people to the secondary or the tertiary sector. So how these secondary sector, how these industry contribute to the GDP and increase the national income. So here we are discussing about the contribution of industry to the national economy or national income. Share of manufacturing sector in India's GDP is 70%. If we talk about the GDP, gross domestic production. So if we talk about the gross domestic production, so near about 70% of the domestic production effect, or we can say supported by the manufacturing industry. This is much lower in comparison to the some East Asian economies where it is 25 to 35%. यानी कुछ ऐसी ईस्ट एशियन इकोनॉमिक हैं यानी एशियन कंट्रीज़ हैं जिनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का 25 से 35% है. स्टिल इट्स गुड फॉर इंडिया बिकॉज एज यू नो इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज्ड है. फिर भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नियर अबाउट 70% अपना कर रहा है. सिंस 2003 manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10% per annum. 2003 से यानी जब से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तब से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो 9 to 10% इनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इंक्रीज हो गया है. द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC हैज़ बिन सेटअप विद दिस ऑब्जेक्टिव, यानी कि इंडस्ट्रीज़ को मूव करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को मोटिवेटेड करने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, उनकी कंस्ट्रक्शन या उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए NMCC नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई है, फॉर्म की गई है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट इन फॉर्म ऑफ सेकेंडरी सेक्टर और वी कैन से डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. Here we can see that industry's contribution to the national income, that is the manufacturing 70%, mining, quarrying, else electricity and gases, these do the 10%. So aggregately we can say or accurately we can say that there is a manufacturing 17, mining, quarrying and 10% of the mining, quarrying and other electricity gases. East Asian countries contribute 25 to 35%. Growth rate of GDP is 70%. Desired growth rate, it should be 12%. Since 2013, growth rate it increased 9 to 10%. So if we want to improve our national economy, or we can say that if we want to improve the contribution of manufacturing industry into national income, so we have to put some kind of policies, यानी हमें कुछ policies फॉर्म करनी पड़ेंगी और उनमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी करना पड़ेगा. मीन्स गवर्नमेंट हैव टू ऑप्ट सम काइंड ऑफ गुड पॉलिसीज
एफर्ट बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, यानी इंडस्ट्रीज़ को अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट लगाने चाहिए. इकोनॉमिक्स प्रेडिकेटेड दैट इंडस्ट्री कैन अचीव अ टारगेट बाय नेक्स्ट डिकेड्स. बहुत सारे इकोनॉमिक्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रेडिक्ट भी किया है कि नेक्स्ट डिकेड यानी आने वाले 20 ईयर्स में इंडिया जो है वो अपने टारगेट्स को अचीव कर लेगा. बट इफ़ वी सी द प्रेजेंट सिनेरियो, एज यू नो दैट प्रेजेंट सिनेरियो everywhere, or we can say globally, there is a spread of COVID-19. So due to the COVID-19, it may be, or we can see that there is a great fall in the GDP, in the contribution of the manufacturing industry. क्योंकि हर जगह प्रोडक्शन एक लॉन्ग पीरियड के लिए, तो जब लॉकडाउन टाइम था एक लॉन्ग पीरियड के लिए तो प्रोडक्शन बंद ही था, और जब भी प्रोडक्शन होगा देर इज़ नो प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल की प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं हो रही, देर इज़ अ लैकिंग ऑफ द लेबर की लैकिंग है. तो इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज इफेक्ट होंगी और इसका जीडीपी के कंट्रीब्यूशन पर भी इफेक्ट आएगा. सो हेयर वी आर टॉकिंग दैट इंडस्ट्री लेबर से इफेक्ट होंगी, इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल से इफेक्ट होंगी. सो व्हाट इज़ द आइडियल लोकेशन फॉर एन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री को ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, और ऐसे कौन सी जगह है वेयर वी हैव टू और वी शुड लोकेट द इंडस्ट्री, जहाँ हमें लगानी चाहिए इंडस्ट्री. सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री और द प्लेस सूटेड फॉर द इंडस्ट्री. यानी ऐसी जगह है जहाँ हमें, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हमें पर इंडस्ट्री लगानी चाहिए. एज यू नो देर आर नंबर ऑफ इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. सो इट डिपेंड ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. हर इंडस्ट्री का लोकेशन दूसरी इंडस्ट्री से डिफरेंट होता है, बट देर आर सम कॉमन फैक्टर्स विच वी सी इन ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्री बिफोर वी लोकेट दैम. यानी किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं जो हमें देखने ही चाहिए कि इन फैक्टर्स से अगर अप्रोप्रिएट है या इफेक्टेड है तो ये जगह किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए प्रॉपर होगी. दीज फैक्टर्स आर आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट. यानी जो भी हमारे साइट पर हम इंडस्ट्री लोकेट करना चाहते हैं वहाँ पर हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी, यानी वहाँ पर हमारा रॉ मटेरियल कैसे रीच करेगा. रॉ मटेरियल ऑब्वियसली जिस भी एरिया से या माइनिंग से या एग्रीकल्चर एरिया से हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, उससे जिस भी साइट पर हमारी इंडस्ट्री है वहाँ तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना होगा और वो कितनी कॉस्ट आएगी हमें उस रॉ मटेरियल को हमारी लोकेशन पर ले जाने के लिए. एट साइट इट मीन्स जहाँ पर हमारी इंडस्ट्री लोकेट है. देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, कि अगर हम किसी भी साइट पर जहां हम इंडस्ट्री लोकेट करना चाहते हैं, वेयर व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. इफ़ वी प्रोड्यूस समथिंग, इफ़ वी लोकेट एन इंडस्ट्री एट एन एरिया, सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट थिंग्स हैं, लाइक रॉ मटेरियल तो हमने एक फैक्टर देख लिया. सेकेंड, लेबर का फॉर्मेट क्या होगा उस एरिया में, इलेक्ट्रिसिटी कितनी अवेलेबल है, वाटर सप्लाई है नहीं, ट्रांसपोर्टेशन मोड प्रॉपर है नहीं. सो किसी भी प्रोडक्शन को हम किसी साइट पर करते हैं तो उस पर कितनी कॉस्ट आएगी. इसमें रॉ मटेरियल का कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, वाटर सप्लाई कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इन सारे जो भी कॉस्ट्स आते हैं उनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं. तो जिन लोकेशन पर कंपैरेटिवली कॉस्ट कम होंगे वहाँ हम पर इंडस्ट्री को लोकेट करेंगे, जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ पर इंडस्ट्री को लोकेट नहीं करेंगे. थर्ड फैक्टर दैट इज़ द डिसीजन ऑफ लोकेट फैक्ट्री एट साइट. दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. सो सबसे इम्पॉर्टेंट एक एंटरप्रेन्योर के लिए होता है कि वह डिसीजन ले कि इंडस्ट्री उसको कहाँ पर लोकेट करनी है. ये सारे फैक्टर्स, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, लेबर अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी, इन सारे फैक्टर्स को अक्यूमुलेट करके हैव टू टेक द अ डिसीजन टू लोकेट एन इंडस्ट्री और फैक्ट्री एट द साइट. कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, नेक्स्ट फैक्टर, और वी कैन सी द नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन. यानी मार्केट के कितने नियर
बाय है। जो भी हम प्रोडक्शन किसी भी साइट पर कर रहे हैं या इंडस्ट्री पर कर रहे हैं, उससे मार्केट हमारा कितना अप्रोच में है, मार्केट हमारा कितना पास में है। सो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो भी हमने प्रोड्यूस किया है इंडस्ट्री के अंदर, उसको नियर बाय एरियाज़ में या डिफरेंट एरियाज़ में उसको सेल करने के लिए वी हैव टू नीड अ मार्केट, हमें मार्केट की नीड होगी। और उस मार्केट तक पहुँचाने के लिए हमें कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ेगा, या लेबर लोडिंग अनलोडिंग के लिए कितना लेबर कॉस्ट देना पड़ेगा। सो ऑल दोज कॉस्ट इंक्लूड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन। सो दीज आर मेन 4 फैक्टर्स, और वी कैन से द 4 थिंग्स विच वी हैव टू लुक बिफोर लोकेट द इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए या एक आइडियल लोकेशन इंडस्ट्री के लिए ये सारे फैक्टर्स को वी हैव टू लुक। हेयर वी आर टॉकिंग दैट कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट क्या होगी। सो देयर इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट, और वी कैन से देयर इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ इंडस्ट्री एंड मार्केट लिंकेज, यानी मार्केट का और इंडस्ट्री के दोनों के आपस के कैसे लिंकेज होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ इनपुट। किसी भी इंडस्ट्री या जो हम इंडस्ट्री लोकेट कर रहे हैं या जो भी हम इनपुट लगा रहे हैं, उसमें हम किसी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में हमें क्या क्या इनपुट लगाना पड़ता है, मतलब हम उसमें क्या क्या चीज़ें लगाते हैं। इनपुट क्या होता है? सो फर्स्ट इज़ रॉ मटेरियल, सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल की नीड होगी। देन कंपोनेंट पार्ट्स लाइक मशीनरी, टूल्स, प्लेस, एवरीवेयर, दीज आर द कंपोनेंट पार्ट्स। देन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, these are inputs, raw material and components parts. Component part, every kind of machinery, tools, these are component parts. Then factor of production, फैक्टर प्रोडक्शन के लिए जो जो फैक्टर हमें चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर अ लैंड वेयर वी हैव टू लोकेट द इंडस्ट्री, जहाँ हमें इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। देन वी रिक्वायर अ लेबर हु डू वर्क इन द इंडस्ट्री, सेकेंड हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। देन कैपिटल, ऑब्वियसली रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को क्लियर करने के लिए, लेबर को सैलरीज प्रोवाइड करने के लिए वी नीड अ कैपिटल। देन एंटरप्रेन्योर जो भी उस इंडस्ट्री को स्टार्ट करा है दे कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर। एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए, इंडस्ट्री को फॉर्म करने के लिए, बिल्डिंग बनाना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, वाटर सप्लाई करना, उसमें मशीनरीज लगवाना, वुडन वर्क करवाना, ऑल दीज थिंग कॉल्ड एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ऑल द फैक्टर्स कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो इनपुट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देन ये पूरा एक साइट है इंडस्ट्री का, यानी कि ये पूरा का पूरा किससे रिलेटेड है? एक इंडस्ट्री लोकेशन से रिलेटेड है, यानी इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। देन वी हैव टू यूज़ द ट्रांसपोर्ट हम 2 मोड्स में यूज़ करते हैं। फर्स्ट वी यूज़ ट्रांसपोर्ट टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम रॉ मटेरियल एरिया टू द इंडस्ट्री। पहला ट्रांसपोर्ट हम यूज़ कब करते हैं? रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल एरिया से इंडस्ट्री तक लाने के लिए। सपोज देयर इज़ अ इंडस्ट्री ऑफ द कॉटन, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। सो वी रिक्वायर कॉटन, रॉ कॉटन फॉर दैट। सो रॉ कॉटन हमें फार्म से लेनी पड़ेगी, तो फार्म से या जिस भी सेलर से हम उसको परचेज करेंगे मार्केट से, वहाँ से लेकर इंडस्ट्री तक ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देना पड़ेगा। सेकेंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वी हैव टू put. So here there is a given a flow chart. So first of all we use the transport and bring the different things to the factory. हम transport use करते हैं और इन सभी चीज़ों को फैक्ट्री तक ले जाते हैं। सेकेंड फैक्ट्री आउटपुट, हम फैक्ट्री में सारे फॉर्म्स को यूज़ करके, कैपिटल लेबर को यूज़ करके हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। देन अगेन वी यूज़ द ट्रांसपोर्ट, हम फिर से ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं प्रोडक्ट मटेरियल को या प्रोड्यूस गुड्स को मार्केट तक पहुंचाने के लिए। सो देयर आर 2 फॉर्म्स वेयर वी यूज़ द ट्रांसपोर्ट, 2 फॉर्म्स में हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। हमने मार्केट जो भी प्रोडक्शन है उसको मार्केट तक सेल कर दिया। अब मार्केट में जब हम सेल करेंगे तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? मनी। ऑब्वियसली व्हेन वी सेल समथिंग वी अर्न मनी, हमें मनी मिलेगा, और इसी मनी को फिर हम एक कैपिटल की फॉर्म में फिर से कहाँ पर लगा देंगे? इस इंडस्ट्री में लगा देंगे। इंडस्ट्री में किस किस चीज़ के लिए? लेबर की सैलरीज प्रोवाइड करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, कंपोनेंट मशीनरीज को परचेज करने के लिए। सो दिस इज़ अ बेसिकली इंडस्ट्री एंड मार्केट लिंकेज, यानी इंडस्ट्री मार्केट से रिलेटेड होती है और मार्केट इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। सो देयर इज़ अ वाइस वर्सा
रिलेशनशिप बिटवीन द इंडस्ट्री एंड मार्केट। मार्केट से हम मनी लेते हैं और सारे सेटअप फॉर्म करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन को फिर मार्केट में सेल करते हैं और मनी अर्न करते हैं, और फिर उसी मनी को अपनी इंडस्ट्री या फैक्ट्री को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। सो देयर इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ इंडस्ट्री एंड द मार्केट लिंकेज। हेयर वी आर स्टडी अबाउट द आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। हम इंडस्ट्री की आइडियल लोकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। सो इंडस्ट्री लोकेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। किसी भी एरिया में रॉ मटेरियल कितना है, लेबर कैसी है, कैपिटल कितना है, वहाँ पावर सप्लाई है या नहीं है, मार्केट से कितने पास है, ये सारे फैक्टर्स हमको इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलो। किसी भी एरिया में जब हम इंडस्ट्री लोकेट करते हैं, सो एज यू नो हमें लेबर की नीड होगी, हमारे रॉ मटेरियल को लाने के लिए एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन मोड की नीड होगी। सो ड्यू टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्टिविटी देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अर्बनाइजेशन। यानी कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप होती जाती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री वहाँ पर लोकेट होती जाती हैं किसी भी साइट पर, धीरे धीरे अर्बनाइजेशन को भी एक बूस्ट मिलता है। अर्बनाइजेशन मीन्स जहाँ रोड फैसिलिटीज़ अच्छी हों, जहाँ कंस्ट्रक्शन अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अच्छी हों, स्कूल्स हों, जहाँ बैंक्स हों, डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छी हों, तो दे कॉल्ड एज अर्बनाइजेशन एरिया। सो धीरे धीरे, और वी कैन से दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। यानी जहाँ इंडस्ट्रीज लोकेट होंगी वहाँ अर्बनाइजेशन अपने आप धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, और जहाँ अर्बनाइज्ड एरिया है यानी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, देयर इज़ अ फैसिलिटी ऑफ बैंकिंग, देयर इज़ अ अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, देयर इज़ अ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो ऑल दीज फैक्टर बूस्ट टू लोकेट एन इंडस्ट्री। यानी ये सारे फैक्टर किसके लिए बूस्ट करते हैं, इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए। सो हियर वी कैन से दैट अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन गो हैंड इन हैंड, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। समटाइम्स इंडस्ट्री आर लोकेटेड और नियर द सिटीज़। कई बार इंडस्ट्रीज सिटीज़ के पास में भी लोकेट की जाती हैं। सो दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। Many industries tend to come together to make use of the advantage offered by the urban center known as agglomeration economy. So here is the word of agglomeration economy. So basically the mean of this agglomeration economy, it means suppose there is a site, suppose we take an example of Neemrana. सो नीमराना में सपोज नीमराना वी कॉल्ड नीमराना एज अ इंडस्ट्रियल एरिया, या हम अलवर की बात करें, फिर टेक अ एग्जांपल ऑफ अलवर ऑल्सो। सो इन अलवर देयर इज़ अ MIA एरिया, इंडस्ट्रियल, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल एरिया। MIA को भी हम एक इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं। सो एग्लोमरेशन इकोनॉमी कॉल्ड, यानी जहाँ कहीं पर बड़ी इंडस्ट्रीज लोकेट हैं, सो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल होती है, लेबर वहाँ पर अवेलेबल होती है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर अवेलेबल होती है। सो कुछ छोटी इंडस्ट्री इन बड़ी इंडस्ट्रीज़ का सपोर्ट लेके अपने आप धीरे धीरे डेवलप कर देती हैं। यानी कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ के सपोर्ट से छोटी इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप कर पाती हैं। दिस टर्म और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एग्लोमरेशन इकोनॉमी। यानी कि एक इंडस्ट्री के सेटअप से, जो इंडस्ट्री अपने लिए सेटअप फॉर्म करती है, उस सेटअप को दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी उसका बेनिफिट्स को लेती हैं। सपोज़ एक बड़ी इंडस्ट्री लाइक टाटा ने कोई इंडस्ट्री लोकेट की, उसने अपना पूरा वहाँ पर सेटअप किया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए GSS फॉर्म किया, पूरा सेटअप फॉर्म किया वहाँ पर। अब एक बार इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर फॉर्म हो गई, वाटर पॉइंट वहाँ पर फॉर्म हो गए, अच्छे रोड्स वहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो गए। सो दूसरी कोई भी इंडस्ट्री अगर लोकेट होगी तो उसे ये सारे बेनिफिट्स अपने आप ही मिल जाएंगे, उन्हें इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने की नीड नहीं होगी, और ईजिली वो अपना जो भी वर्क है, प्रोडक्शन है, वो ईजिली कर पाएगी। लेबर की उसको ईजिली अवेलेबिलिटी हो जाएगी। अगर वहाँ बैंक ऑलरेडी हैं तो बैंक फैसिलिटी वो ईजिली क्रेडिट वहाँ से ले सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी होते हैं। सो दिस टर्म और द प्रोसेस कॉल्ड एज एग्लोमरेशन इकोनॉमी। नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री. So after see the two topics, we have completed two topics. First, the industry help or contribute in the economy, and the second one, the ideal location of industry. Now we will see the classification of industry. ये industry का classification हम किन किन basis पर करते हैं. So there are four bases on which behalf we can classify the industry. First, source of raw material.
यानी कहाँ से हम किसी भी इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से हम ले रहे हैं, कहाँ से अवेलेबल हो रहा है. फर्स्ट, on the basis of raw material we can divide industry into two parts. First, the agro based industry and the second one is mineral based industry. पहली है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर एरिया से आता है. लाइक एग्जांपल्स, कॉटन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वूल फॉर वुलन इंडस्ट्री, जूट फॉर जूट इंडस्ट्री, सिल्क for silk industry, rubber industry, sugar cane for sugar industry and tea and coffee. So all these raw material produced in agriculture area, यानी ये सब cultivated crops हैं, cultivation होता है इनका, agriculture से हम इनका raw material को लेते हैं. So first is agro based industry, means जिनका raw material हम कहाँ से लेते हैं, agriculture area से लेते हैं. Second, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, सेकेंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि जिस इंडस्ट्री में हम रॉ मटेरियल क्या ले रहे हैं, मिनरल ले रहे हैं. सो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. इन सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है वो एक मिनरल की फॉर्म में है. सेकेंड, द सोर्स, दैट इज़ द रोल, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के रोल कैसे हैं, इंडस्ट्री क्या क्या रोल पे कर रही हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ रोल देयर आर टू काइंड ऑफ इंडस्ट्री. फर्स्ट, बेसिक इंडस्ट्री एंड द सेकेंड इज कंज्यूमर इंडस्ट्री. Basic industry, those industry which, or we can say that those industry which support to the other industry, वो industry जो दूसरी industries को भी support provide कर रही है. Like iron and steel industry, iron और steel industry. अब if you want to locate any textile industry, so we require a machinery and machinery made by iron and steel obviously. If we want to do any kind of work, suppose अगर हम एक छोटी सी स्टिचिंग स्विंग मशीन भी अगर हम लेते हैं, so वो भी किसकी बनी हुई थी, आयरन की. और आयरन के लिए कहाँ से हमें मिलेगा, वो मशीन फॉर्म करने के लिए आयरन कहाँ से मिलेगा, द आयरन we can get the iron from the iron and steel industry. So some kind of basic industry जो दूसरी industries को support provide कर रहे हैं. So these industries, example of the basic industries are iron and steel industry, copper smelting industry, aluminium smelting industry. सेकेंड, कंज्यूमर, यानी कि वो इंडस्ट्री जिनमें जो भी प्रोडक्शन बनेगा वो डायरेक्ट कंज्यूमर्स के लिए यूज़ आएगा. शुगर इंडस्ट्री, हम शुगर केन से शुगर बनाते हैं मशीनरीज की हेल्प के लिए. सपोज शुगर इंडस्ट्री के लिए मशीनरी हमें कहाँ से चाहिए, आयरन और स्टील से बनेगी, तो वो आयरन स्टील कहाँ से आएगा, आयरन एंड स्टील से. सो इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, बेसिक इंडस्ट्री, जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. कंज्यूमर इंडस्ट्री, दोज इंडस्ट्री विच प्रोडक्ट डायरेक्टली यूज बाय द कंज्यूमर्स, यानी वो इंडस्ट्री जो ऐसा प्रोडक्ट बनाती हैं जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ करते हैं. लाइक शुगर इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक, पेपर एंड मशीन्स एट्सेट्रा. ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल we can again divide these industry in two parts. जो हमारा थर्ड बेसिस है that is the capital. कैपिटल के बिहाफ पे हम इंडस्ट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मैच मेकिंग, लाइक मैच बॉक्स जो बनाती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, टॉयज़, प्लास्टिक कंटेनर्स एंड अदर गुड्स, यानी कि जिनका टर्नओवर कंपैरेटिवली कैसा होता है, स्मॉल होता है. एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जिनका टर्नओवर कैसा होगा, लार्ज, प्रोडक्शन कैसा होगा, लार्ज, एरिया कैसे होंगे, लार्ज, रॉ मटेरियल ज़्यादा क्वांटिटी में आएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा लेबर होगी. सो लाइक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ड्रग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंडस्ट्री, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज़ को हम इनके स्केल के बेसिस पर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. लाइक जिनका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपीज़ से कम होगा, दे कॉल्ड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. और जिनका सेटअप 1 करोड़ रुपीज़ से अबव होगा, दे कॉल्ड एज लार्ज स्केल इंडस्ट्री. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप वी कैन डिवाइड द इंडस्ट्री इन डिफरेंट पार्ट्स. On the basis of ownership, we can divide industry in 4 parts: public sector, private sector, joint sector, and cooperative sector. So first we discuss the public sector. Public sector means government sector. So
The first sector of the ownership basis, that is the public sector. Public means government sector. These industries are aimed and operated by the government agency. यानी ये basically basic needs like electricity, ट्रांसपोर्टेशन, फॉर्म ब्रिज फॉर्मेशन, सो जितने भी इम्पॉर्टेंट बेसिक नीड्स हैं वो सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो गवर्नमेंट ने अपने अंडरटेकिंग में ले रखी हैं. सो दीज आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, यानी जिनका एम और ऑपरेटेड सिर्फ गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के पास इनकी अथॉरिटीज़ होती हैं, दे कॉल्ड एज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री. सेकेंड वन, दैट इज़ द प्राइवेट सेक्टर. दीज इंडस्ट्रीज़ आर ओन्ड बाय और ऑपरेटेड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. जो भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वही इनकी ऑनरशिप करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ दीज टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, डाबर इंडस्ट्रीज़. दीज आर द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, यानी जिनकी ऑनरशिप, जिनका अथॉरिटी प्राइवेट इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास होता है. थर्ड kind of industry, that is the joint sector. These industries are jointly run by the state and individuals or a group of individuals. यानी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या इंडिविजुअल्स, यानी कुछ पार्ट इसका गवर्नमेंट का होगा और कुछ पार्ट प्राइवेट. सो वी कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक और प्राइवेट का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट. दैट वाई इट्स कॉल्ड एज जॉइंट, यानी जॉइंट सेक्टर जिसमें पब्लिक भी हो और प्राइवेट भी हो, बट इट डिपेंड ऑन देयर शेयर. कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पर पब्लिक का सेक्टर ज़्यादा होता है, यानी शेयर ज़्यादा. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट का 60% शेयर और प्राइवेट कंपनी जो भी होगी उसका 40% शेयर होगा. कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनमें गवर्नमेंट का ज़्यादा शेयर होता, कम शेयर होता है, लाइक 30%, 20%, और प्राइवेट कंपनी का ज़्यादा शेयर होता है. सो इट डिपेंड ऑन देयर शेयर. ऑयल इंडिया लिमिटेड इज जॉइंटली ओन्ड बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द जॉइंट सेक्टर. सो यू हैव टू लर्न ऑल these एग्जाम्पल ऑफ these सेक्टर्स. लास्ट, that is the cooperative sector. These industry are owned and operated by the producer or suppliers of raw material, workers or both. यानी कि बेसिकली ये इनमें है, ये भी एक जॉइंट फॉर्म है, यानी कि दो लोग होते हैं यहाँ पर, बट दे कॉपरेट टू ईच अदर. जिसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, देन सेकंड सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल और वर्कर्स. वर्कर से भी कॉपरेटिव हो सकता है और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल से भी हो सकता है. दे पूल इन द रिसोर्स एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस proportionately, such as the sugar industry in Maharashtra, the coir industry in the केरला. सो बेसिकली जो प्रोड्यूसर होगा यानी इंडस्ट्री का जो ऑनर होगा वो, और जो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर होगा यानी जो भी रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कर रहा है. फॉर एग्जांपल तो माइनिंग में जो वर्कर्स हैं वो, या किसी भी एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का अगर रॉ मटेरियल है तो जो भी एग्रीकल्चर कर रहा है वो दोनों आपस में टैप कर लेंगे. जो भी उनके प्रॉफिट्स होंगे, जो भी उनके लॉस होंगे, उनको अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. और इसके अकॉर्डिंग प्राइवेट और वी कैन से दैट कोऑपरेटिव सेक्टर में इंडस्ट्री का लोकेशन हो जाएगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वी कैन डिवाइड इंडस्ट्री इन 4 पार्ट्स. पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, प्राइवेट मीन्स इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जॉइंट combination of public and private, share cooperative sector, combination of producers, suppliers of raw material. So these are the different classification of the industry. Thank you.